سبسکرائب ضرور کر دے۔ میں ابو کے ساتھ گھر پر اکیلی رہتی تھی، کبھی کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں تھا، پر شادی کی رات شوہر نے بے حیائی کا الزام لگا دیا۔ میرا پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا جس میں 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ وہ مجھے طلاق دے کر مائکے چھوڑ گیا۔ میں بہت پریشان تھی، میرے ساتھ کس نے کیا ہوگا۔ پھر آدھی رات کو میرے بستر پر شوہر کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میری جان نکل رہی تھی اور میں دیدے پھیلائے بس اسی کو دیکھے چلے جا رہی تھی، جبکہ وہ غصے میں پیچھے ہوتے مجھے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے باہر۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بظاہر شریف نظر آنے والی عورت اس قدر بدکردار اور داغدار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی اور دھیرے دھیرے میرے پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے گھر والے کمرے کا دروازہ بجاتے اندر داخل ہوئے تھے اور وہ غصے میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو بڑی تعریفیں کی تھی، لڑکی بہت ہی نیک ہے، شریف ہے، بن ماں کی بچی ہے، کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، ذرا کرتوت تو دیکھیں اس کے، کنواری نہیں ہے یہ سننا تھا کہ میری ساس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی تو کبھی مجھ پہ، پھر ایک لمحے میں وہ مجھ تک آئی اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ سچ سچ بتا، یہ سب کیا ہے؟ میرا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے کیا؟ ان کے الفاظ میں انگارے جل رہے تھے اور وہ انگارے مجھے اپنی ذات پر محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماچا میرے منہ پر لگایا اور کہنے لگا، زیادہ بچی نہ بن، اچھی طرح جان گیا ہوں میں تو کیا گل کھلا کر آئی ہے۔ اماں تم یقین کرو یا نہ کرو لیکن یہ بدکردار نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہٹا تھا، جبکہ اس کی ماں حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے میرے باپ کو فون کر کے بلا لیا تھا اور میں اپنے باپ کے آگے سر جھکائے شرمسار کھڑی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں مجھ جیسی پاکیزہ لڑکی پر ایسے داغ لگیں گے۔ میں جو کبھی کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، مجھ پر بدکردار ہونے کا بہتان باندھ دیا جائے گا۔ میں اپنے باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے والد صاحب بھی پتھرائی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نورین، کیا کیا ہے تم نے؟ میں نہیں مان سکتا کہ میری بیٹی کچھ غلط کر سکتی ہے۔ میرے والد صاحب کا نفی سر ہلا رہا تھا اور میرا شوہر طنزیہ مسکراہٹ لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی بیٹی بہت شرافت سے گھر میں رہتی ہوگی؟ پوچھے اسے اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے اور آپ نے کس کی گندگی میرے سر تھوپ دی ہے؟ میرے شوہر کا رویہ لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا اور کہنے لگے، خبردار جو ایسی کوئی بھی بات کی، میری بیٹی بہت نیک اور شریف ہے اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں۔ پھر بھی اگر تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو ہم کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تم جس معیار پر میری بیٹی کو جانچ رہے ہو وہ صحیح بھی ہو۔ میرے والد صاحب کے کہنے پر میری ساس بھی راضی ہو گئی اور کہنے لگی، ہاں ہمیں ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے۔ پھر وہ لوگ مجھے لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا تو میرے دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتی تھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ایک پل کا چین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی مشین سٹارٹ کی تھی اور دھیرے دھیرے میرے پیٹ پر وہ ایک آلہ گھما رہی تھی اور میں آنکھیں بند کیے اپنی بدنصیبی پر آنسو بہا رہی تھی۔ سالوں بعد میری زندگی میں کوئی خوشی آئی تھی، لیکن وہ بھی بس چند لمحوں کی مہمان ثابت ہوئی تھی۔
चंद ही लम्हों में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी और मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा था कि हर तरफ मेरा ही नाम के चर्चे हो रहे थे। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड मुकम्मल किया और फिर मुझे बाहर आने को कहा। वो अपने रूम में जाकर बैठ गई और मैं इनके पीछे आ गई। इनके कमरे में मेरा शोहर, मेरी सास और मेरे वालिद साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब की पुरानी जानने वाली थी, इसलिए मेरे वालिद साहब ने इन्हें सारी ही बात बता दी थी। उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामने रखी और गहरा सांस लिया। फिर वो कहने लगी, ये कहते हुए मुझे खुद भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है सज्जाद साहब, लेकिन आपके दामाद का इल्जाम ठीक है। आपकी बेटी बा किरदार नहीं है बल्कि हामला है। ये सुनना था कि मेरे कदमों तले से तो जमीन ही निकल गई थी, जबकि मेरी वालिद साहब वो अपनी जगह सिकते में आ गए थे। और मेरा शोहर, जो कुछ देर पहले ही मेरा शोहर बना था, जोर से हंसा था। देख लिया, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। मैंने क्या कहा था, ये लड़की बा किरदार नहीं है, ये बद किरदार है। मेरा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं, किसी और का नाजायज बच्चा ये मेरे सर थोपने चली थी और इसका बाप बहुत इसके किरदार की गवाही दे रहा था। अब खुद ही संभाले अपनी बेटी, में इसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शोहर ने मुझे तलाक कह सुनाई थी और मेरी सास के साथ वो बाहर चला गया था। मेरे वालिद वहीं बैठकर आंसू बहाने लगे थे और मैं खुद वहीं जमीन पर बैठ गई थी। डॉक्टर साहिबा ने मुझे संभाला और कहने लगी, बेटी अगर कोई गलती हुई है तो अपने वालिद साहब को बता दो। ये जिस किसी का भी बच्चा है वो इससे राब्ता करेंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। हमारे ससुराल वालों ने अस्पताल में भी काफ़ी हंगामा किया है। मुझे यकीन है कि उन्होंने पास पड़ोस और मोहल्ले में भी काफ़ी चर्चा किया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा मुझे प्यार मोहब्बत से समझा रही थी और मैं बस रोई चली जा रही थी। क्या बताती इन्हें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं था। मैंने तो कभी किसी को नजर भर कर भी नहीं देखा था, मगर ये बच्चा फिर किसका था? मैं कैसे इस बात को जस्टिफाई करती? मेरे वालिद साहब ने खामोशी से सारी रिपोर्ट्स उठाई, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। वो जैसे संभल चुके थे, फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मैं किसी बेजान लाश की तरह इनके पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने रिक्शा किया, मुझे रिक्शे में बिठाया और फिर हम अपने घर पहुंच गए। अभी भी मेरे हाथों पर सुर्ख मेहंदी सजी हुई थी, कुछ जेवरात भी जिस्म पर मौजूद थे। लिबास अलबत्ता मैंने तब्दील कर लिया था, लेकिन ये भी नहीं, दुल्हनों जैसा ही बहुत ज्यादा कड़ा हुआ था। अब्बा बिना कुछ कहे अपने कमरे का रुख किया था और इसी बात ने मेरी जान निकाल ली थी। अब्बा प्लीज मेरी बात सुने। मैंने जाते हुए अब्बा को रोका था। अब्बा ने पलटकर एक नज़र मुझ पर डाली थी। वो नज़र इतनी सर्द थी कि मेरे बयान से भी बाहर थी। अब्बा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आंखों से बहते आंसू शायद इन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन दिला देते। यही सोचकर मैं रोते हुए इनके पैरों में बैठ गई थी। अब्बा कहने लगे, नौरीन मुझे लगा था कि तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं अकेला ही तुम्हारी तरबियत कर सकता हूँ। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर शादी नहीं की ताकि तुम्हें कभी सुतेली माँ की वजह से कोई ज्यादती बर्दाश्त ना करनी पड़े, लेकिन मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मेरी इतनी कुर्बानियों के बावजूद तुम इस हद से गुजर जाओगे। अब्बा ये कहकर अपने कमरे में जाकर बंद हो गए थे और मैं वहीं रोते रोते जमीन पर अपनी चूड़ियों भरे हाथ पीटने लगी थी। देखते ही देखते सारी चूड़ियां टूटकर बिखर गई थी। मेरे हाथों से खून रसने लगा था, लेकिन दिल था कि संभल ही नहीं रहा था। न जाने कितने ही लम्हे ऐसे गुजर गए थे। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उठी और इस कमरे में पहुंची जहां से कुछ घंटों पहले ही मैं रुखसत हुई थी। वो कमरा अब भी जैसा के वैसा था।
मेरे पुराने कपड़े तैयारी की जल्दी में बिखरे हुए, मेरे कुछ दीवार और सामान वगैरह सब वैसा ही बेतरतीब था। अभी तो शायद मेरे पीछे मेरे घर की सफाई भी नहीं हुई थी और मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। मैंने बिस्तर साफ किया और चुपचाप से अपने बिस्तर पर लेट गई। सब चीजें बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। गुजरी शब इसी बिस्तर पर लेटकर मैंने नई जिंदगी के हवाले से कितने ख्वाब देखे थे कि मेरी और अजमल की शादी होगी और अजमल के साथ मैं एक नई जिंदगी गुजारूंगी। मेरी सालों पुरानी तन्हाई खत्म हो जाएगी। माँ के जाने के बाद से मेरे लिए जिंदगी बहुत वीरान हो गई थी। मुझे लगा था कि नई जिंदगी, नए घर, नए रिश्तों में सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा और मैं बहुत खुश रहूंगी, मगर किसको खबर थी कि ये सब हो जाएगा। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा तो शर्मिंदगी और जिल्लत के एहसास से मेरा दिल खून के आंसू बहाने लगा। ये किसका बच्चा था? 4 माह का हमल, 4 माह पहले किसने मेरे साथ? ये वो सवाल थे जिन्होंने मेरे अंदर आग भर दी थी। काश कि मैं इन सवालों का जवाब हासिल कर पाती। रोते रोते ही मुझे नींद लग गई थी। मैं हमेशा से बहुत गहरी नींद सोने की आदी थी, लेकिन फिलहाल मुझ पर जो गुजरा था इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा रोने की वजह से नींद आई थी। गहरी नींद नहीं थी, इसलिए शायद रात के किसी पहर मेरी आंख खुली और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि बिस्तर पर तन्हा नहीं थी बल्कि मेरे साथ। मेरा नाम नौरीन है। मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी। मेरी अम्मा बताती थी कि मैं इनकी शादी के 7 साल बाद पैदा हुई हूँ और इसलिए वो और अब्बा दोनों ही मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। इन दिनों मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखा और मैं सबकी लाडली बनकर बड़ी होने लगी, लेकिन महज 10 साल की उम्र में ही मेरी माँ इस दुनिया से गुजर गई और ये वो सदमा था जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन मुझसे ज्यादा मेरे वालिद की हालत गैर थी। वो तो जैसे इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सके थे। वो मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी माँ एकदम से ही बीमार हुई थी और मेरे वालिद इनके साथ बिस्तर से लग कर बैठ गए थे। कभी इनके सर दबाते, कभी पाँव दबाते, इनका हर तरीके से ख्याल करते, लेकिन माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। हम इन्हें लेकर अस्पताल भागे और वहाँ मेरी माँ ने दम तोड़ दिया। जब डॉक्टर ने ये खबर हमें सुनाई तो मेरे अब्बा जमीन पर गिर गए थे। कितनी ही देर इन्हें होश नहीं आया था। मोहल्ले वालों ने जैसे तैसे अब्बा को संभाला था और फिर अम्मा की तदवीन के बाद भी अब्बा गम से नढाल बस हर वक्त अपने कमरे में रहने लगे थे। ना इन्हें घर का होश था, ना कारोबार का। फिर अब्बा के कुछ दोस्त हमारे घर आए। वो काफी देर तक अब्बा के कमरे में बंद रहे। इसके बाद धीरे धीरे अब्बा ने संभलना शुरू किया। शायद इनके दोस्तों ने मिलकर इन्हें संभाल लिया था। अब्बा ने वापस कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वो घर और कारोबार दोनों संभाल रहे थे। मेरा भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन मेरी हालत नहीं संभल पाई थी। मैं हर वक्त माँ को याद करके रोती रहती थी। अब्बा मुझे घुमाने फिराने ले जाते, मुझे चीजें दिलाते, मेरे साथ शॉपिंग करते। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। फिर कुछ रिश्तेदार हमारे घर आए। उन्होंने अब्बा पर दूसरी शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे जब तक नौरीन की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी के सर पर सुतीली माँ नहीं लाना चाहता। वो पहले ही अपनी माँ के गम से नढाल है। मैं इसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मोहब्बत में बंटवारा चाहता हूँ। फिर एक दिन मेरे मामू हमारे घर आए और इनका अब्बा के साथ बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा क्यों हुआ था ये तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन इस दिन के बाद अब्बा ने मामू को दोबारा कभी हमारे घर में कदम नहीं रखने दिया और मुझे भी सख्ती से कहा कि अपने मामू से कभी मिलने की कोशिश ना करना। मामू 1-2 दफा स्कूल के बाहर आकर खड़े हुए, लेकिन अब्बा के हुक्म की वजह से मैं इनसे मिलने के लिए नहीं गई। एक दिन वो जबरदस्ती मेरे रास्ते में आ गए और कहने लगे कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। ये सुनना था कि मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज पर इर्द गिर्द से लोग जमा होने लगे। सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये आदमी तुम्हारा कौन है और तुम क्यों रो रही हो, जबकि मेरे मामू चीख चीख कर सबको कह रहे थे ये मेरी भांजी है, मेरी बहन मर चुकी है और इसका बाप एक अच्छा आदमी नहीं है।
इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनना था कि मैंने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और लोगों ने मेरे मामू को ही गलत समझा और इन्हें मार पीट कर भगा दिया। इस दिन के बाद से दोबारा मेरे मामू मुझे लेने के लिए नहीं आए, क्योंकि मैंने सब लोगों के सामने साफ साफ कह दिया था कि मैं इस आदमी को नहीं जानती। अब्बा का यही हुक्म था और सबसे बड़ी बात, वो अब्बा के बारे में झूठ कह रहे थे। मेरे अब्बा हरगिज भी कोई बुरे आदमी नहीं थे, जो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी खातिर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वरना मेरी तो क्लास की लड़कियों ने भी मुझे यही कहा था कि चंद दिन गुजरने दो, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे सर पर सुतीली माँ बिठा देनी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मैं 15 बरस की हो गई थी। मेरी जिंदगी बस मेरे घर और मेरे वालिद तक महत हो गई थी। मेरे अब्बा मुझे बाहर दोस्तियां करने को मना करते थे, इसलिए मेरी किसी लड़की से कोई दोस्ती नहीं थी। मैं स्कूल से वापस घर आती, घर के कुछ काम काज निपटाती और इसके बाद पढ़ाई में मसरूफ हो जाती। यही वजह थी कि मैं हर क्लास में अव्वल पोजीशन लेती और अब्बा मेरे अव्वल आने पर इतना खुश होते कि मुझे मेरी मर्जी की शॉपिंग करवाते, मेरी पसंद के तोहफे देते और मेरा बहुत ख्याल करते। दिन ब दिन मेरी जिंदगी खुशियों से भरने लगी थी। माँ की कमी अपनी जगह थी, लेकिन अब्बा के रवैये ने मुझे खुश कर दिया था और मुझे इस बात का एहसास था कि मेरी वजह से वो तन्हा रह गए हैं। फिर मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। अब्बा काफी परेशान नजर आने लगे थे। कई दफा मैंने पूछा, अब्बा आप परेशान क्यों रहते हैं? तब एक दिन अब्बा कहने लगे, मुझे डर लगता है नौरीन, मैं तेरी शादी तो कर दूं, लेकिन फिर मैं अकेला क्या करूंगा? तू रुखसत होकर चली जाएगी तो मैं तन्हा रह जाऊंगा। लेकिन फिर सोचता हूँ कि ये तो तेरे साथ जुल्म होगा। मुझे किसी अच्छी जगह तेरी शादी करनी चाहिए, यही बाप होने का फर्ज है। अब्बा की बात सुनकर मैंने साफ इनकार किया और कहा, अब्बा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मेरे इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मैं कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी भी जाना चाहती हूँ। मगर एक दिन अब्बा बहुत कम सिन से बैठे थे, न जाने वो कहाँ से आए थे और आने के बाद बिल्कुल खामोश थे। कहने लगे, नौरीन मैंने फैसला किया है कि अब मैं वाकया किसी अच्छी जगह तेरी शादी कर दूंगा। मैं हैरान हुई और कहा, अब्बा अचानक से आपको ये मेरी शादी का ख्याल क्यों आया? अब्बा कहने लगे, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं और मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों के सामने तुझे रुखसत कर दूं। अब्बा की बात सुनकर मैं मुस्कुराई और कहा, अब्बा ऐसी बातें ना करें, आप तो बहुत जवान हैं और अभी भी इतने हैंडसम नजर आते हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। आप कहाँ अपने आप को बीमार और बूढ़ा कह रहे हैं? मेरी बात पर अब्बा ने मुस्कुरा कर मुझे देखा और कहने लगे, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जिंदगी और मौत का क्या भरोसा? तुम्हारी माँ को देखो, कितनी चुपचाप हमारी जिंदगियों से निकल गई। ये कहते हुए इनकी आंखें भीग गई और मैं इनके कदमों के पास बैठ गई। अब्बा आप अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे ना? वो मुस्कुराए और बोले, हाँ हम दोनों की पसंद की शादी थी। तुम्हारी अम्मा उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने जमाने के खिलाफ जाकर इनसे शादी की। मगर मुझे क्या पता था कि तुम्हारी अम्मा मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली जाएंगी। अब्बा ने आंसू पोंछे थे और मैं बस अब्बा के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। वो बहुत जज्बाती कैफियत से गुजर रहे थे और मैं सोच रही थी कि अम्मा इतने खुश किस्मत थी जिन्हें अब्बा जैसे जीवन साथी मिला। दरअसल मेरी अम्मा और अब्बा के दरमियान उम्रों का काफी फर्क था। मेरी अम्मा अब्बा से 10-15 साल बड़ी थी और अब्बा ने फिर भी सबके खिलाफ जाकर इनसे मोहब्बत की शादी की थी और फिर अम्मा के जाने के बाद से अब तक अब्बा ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। इससे ज्यादा बला मोहब्बत का और क्या सबूत हो सकता था? और इसलिए मुझे अपनी जिंदगी में अब्बा जैसा ही जीवन साथी चाहिए था। लेकिन फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मगर अब्बा कहने लगे कि अब तुम 18 साल की हो गई हो और अब मैं तुम्हारी शादी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अच्छे रिश्ते देखना शुरू कर दिए हैं। फिर एक दिन अचानक ही अब्बा ने बताया कि मेरे लिए अजमल का रिश्ता आया है। वो 2 मोहल्ले पीछे ही रहने वाला एक अच्छा और खूबरू नौजवान था, कमाता भी अच्छा था। इसलिए अब्बा ने इनकार न
और इन्हें घर आने दिया। अजमल के घर वालों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। सारे मोहल्ले वाले मेरी शराफत की गवाही देते थे। मैंने हमेशा बस, स्कूल और कॉलेज से घर तक का ही सफर तय किया था। ना कभी बिला जरूरत घर से बाहर निकली, ना दरवाजे पर खड़ी हुई, ना ही मेरी कोई सहेली थी और ना ही कोई ऐसी हरकत के कोई भी मेरे खिलाफ कुछ कहता। इसलिए सब ने मेरे किरदार की गवाही दी और मेरा और अजमल का रिश्ता पक्का हो गया। मैं जो शादी नहीं करना चाहती थी, रिश्ता पक्का होने के बाद बहुत ज्यादा रोई भी थी, लेकिन फिर अब्बा ने समझाया था कि वक्त पर अपने घर की हो जाओगी तो मुझे सुकून हो जाएगा। मेरे पीछे तुम घर में अकेली रहती हो, तुम मुझे बहुत डरका लगा रहता है। मैंने इतने सालों से तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि इस वक्त तुम जवान नहीं थी, शादी के काबिल नहीं थी, लेकिन अब तुम शादी के काबिल हो गई हो तो मैं इस परेशानी और इस मुश्किल से निकलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे घर से बाहर ये परेशानी ना हो कि पीछे मेरी बेटी अकेली है। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे समझाया था और फिर फोन पर अजमल से मेरी बात भी करवाई थी। मैं तो शुरू में घबरा ही गई थी कि मैं अजमल से क्या बात करूं, लेकिन फिर अब्बा के कहने पर मैंने सलाम दुआ की तो अजमल ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि आजकल की लड़कियां पहले ही किसी और को पसंद करती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते निभाते नहीं हैं बल्कि जल्दी टूट जाते हैं। जल्दी टूट जाते हैं। अजमल के दिल में न जाने किस तरीके का खदशात थे कि उन्होंने मुझसे सीधे ही सवाल किया था। मैंने फौरन कहा, अजमल मैं किसी को पसंद नहीं करती। ये सुनकर उन्होंने ठंडी सांस भरी और कहने लगे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरी पहले भी एक मंगनी टूटी है। दरअसल वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती थी और इसके घर वालों ने जबरदस्ती मंगनी मुझसे करवा दी। मंगनी के बाद वो इस लड़के के साथ फरार हो गए और यकीन जानो कि इसके इस तरह भाग जाने की वजह से मैंने बहुत जिल्लत उठाई है। मेरे दोस्तों यारों ने, यहाँ तक के मोहल्ले वालों ने भी मेरी हंसी उड़ाई है। इसलिए मैंने पहला ही ये सवाल पूछ लिया। अजमल की बात सुनकर मुझे समझ आ गया था कि इसका सवाल क्या मकसद था, मगर मैंने इनसे कह दिया कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं। ये सुनकर वो मुतमईन हो गए थे। फिर मेरी और अजमल की कभी एक आध बार बात हो गई, वो भी अब्बा ने जब करवाई तब, क्योंकि मेरे पास ज्यादा मोबाइल फोन भी नहीं था। मुझे इतना समझ आ गया था कि अजमल एक अच्छा इंसान है और बस वो रिश्तों के मामले में जरा डरा हुआ है, क्योंकि इसकी पहली मंगेतर ने इसके साथ वाकई ही गलत किया था। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो इसका बदला मुझसे लेगा और शादी की रात मुझे पाकीज़गी का टेस्ट भी देना होगा। हमारे रिश्ते के बाद शादी के दिन यूं तेजी से करीब आए कि पता ही नहीं चला। अब्बा ने मेरी शादी के लिए हर वो चीज की जो एक बाप कर सकता है। अब्बा ने मुझे महंगे तरीन सोने का जेवर बनाया, फर्नीचर दिया, कपड़े, गाड़ी, हर चीज, और मुझे अजमल के साथ रुखसत कर दिया। लेकिन कौन जानता था कि मेरी किस्मत में ऐसी बदबख्ती लिखी थी कि शादी की पहली रात ही मुझे न सिर्फ बदकिरदार ठहराया गया बल्कि मैं 4 माह की हामला साबित हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं जिसने कभी किसी मर्द को नजर भर कर नहीं देखा था वो हामला थी, वो भी पिछले 4 महीनों से। मेरा रो रो कर बुरा हाल था और यूं ही रोते रोते मैं सो गई थी। शादी की पहली रात ही तलाक का दाग माथे पर लग गया था। अगली सुबह मुझे दुनिया को भी मुंह दिखाना था और अपने अब्बा को भी, जो शायद सब की तरह मुझे गुनहगार समझ रहे थे। मुझे सोए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ बिस्तर पर कोई मौजूद है। मैं बुरी तरह घबरा गई, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। बस मैं ये महसूस करना चाहती थी कि ये मेरा वहम है या सच मेरे कमरे में कोई मौजूद है। सच तो ये था कि मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। वो जो कोई भी था वो बिस्तर पर मेरे बहुत करीब आया था और फिर शायद मुझे सोता हुआ देखकर वो कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ गया था, वो वाहिद अलमारी जिसमें मेरा सामान मौजूद था। मैंने आधी खुली आधी बंदी आंखों से देखने की कोशिश की तो मुझे अंधेरे में ये बात समझ आ गई थी कि वो जो कोई भी था मेरा सामान टटोलने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद चोर है। शादी वाला घर था और शादी वाले घरों में अक्सर ही सामान बहुत ज्यादा होता है
और ये सोच कर ही मेरी जान निकल गई थी। लेकिन वो अगर कोई चोर होता तो मेरे वो जेवरात उठाता जो साइड टेबल पर पड़े थे। अलमारी में तो महज चंद कपड़े और अम्मा की कुछ पुरानी यादें मौजूद थी। कुछ देर बाद वो शख्स कमरे से बाहर निकल कर जाने लगा और बाहर सहन में मौजूद जीरो के बल्ब में मुझे इसका चेहरा दिखाई दिया और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा थे, जो ना जाने क्यों मेरे कमरे में आए थे और मेरी अलमारी में घुसे थे। अब्बा के जाने के बाद मैं दबे कदमों उठी और मैंने अलमारी खोली तो देखा कि कपड़ों की वो पोटली जो अम्मा की थी और जिसमें अम्मा का कुछ जरूरी सामान मैं यादों के तौर पर रखा था, वो ऊपर की तरफ रखी थी, जबकि वो पोटली हमेशा पीछे रखती थी। यकीनन अब्बा ने वो पोटली खोली थी। मुझे लगा शायद अम्मा की याद में खोली होगी। यही सोचकर मैंने वो पोटली खोली तो मेरे हाथ पांव लरसने लगे, क्योंकि इसमें ऊपर ही 2-4 खत रखे हुए थे जो पहले मौजूद नहीं थे। और जब मैंने वो खत खोल कर पढ़े तो वो किसी आशिक की तरफ से मेरे लिए लिखे गए थे। इन खतों की तहरीर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। इन खतों के मुताबिक मेरा कोई आशिक था जो मुझसे हमारे बच्चे की खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। ये खत इस तरह से लिखे गए थे जैसे हमारे दरमियान अक्सर ही खतों किताबत का सिलसिला होता हो। कुछ सवालात थे, कुछ सवालों के जवाब जैसे कुछ पूछा गया हो और इसके जवाब में ये खत लिखे गए हों। ये खत कल तक भी यहाँ नहीं थे, क्योंकि शादी से पहले भी मैंने अम्मा के सामान को सीने से लगाया था। मैंने जल्दी से वो सारे खत एक तरफ करके बिस्तर के नीचे छुपा दिए, पोटली वापस वैसे ही बांध कर रखी और फिर बिस्तर पर लेट गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। अब्बा ने ये पोटली क्यों खोली थी और क्या ये खत अब्बा रख कर गए हैं? मेरे हाथ पांव पसीने से भर गए थे। अगली सुबह जब मैं कमरे से निकली तो अब्बा कड़े तेवरों से मुझसे पूछने लगे कि बताओ अब मुझे ये बच्चा किसका है। अब्बा की बात में मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, अब्बा मैं सच कह रही हूँ, ना ये बच्चा मेरा है और ना ही मैं कुछ जानती हूँ। अब्बा कहने लगे, तुम्हारी वजह से बहुत बदनामी हो गई है नौरीन, शायद हमें ये मोहल्ला भी छोड़कर जाना पड़े, इसलिए बेहतर यह है कि अपने आशिक का नाम बता दो ताकि मैं तुम्हें इसके साथ रुखसत कर दूं। मैं अब्बा की बात सुनकर रोने लगी तो अब्बा उठे और मेरे कमरे का रुख किया और फिर मेरा सामान बिखरना शुरू कर दिया जैसे कुछ तलाश कर रहे हों। चंद लम्हों में ही मुझे अब्बा का खेल समझ आने लगा था, लेकिन इस खेल के पीछे की वजह मुझे अब भी मालूम नहीं थी। कुछ देर बाद अब्बा ने पोटली खोली और इसका सामान फैलाने लगे और फिर धीरे धीरे इनकी शक्ल पर अजीब से तासरात नजर आए, जैसे वो किसी मकसद में नाकाम हुए हों। इनके लहजे में वाज़ेह झंझलाहट थी। वो खत जो तुम्हारे आशिक ने तुम्हें, फोन तो तुम्हारे पास था नहीं, यकीनन खत पर ही बात होती होगी। अब्बा की बात पर मैं हक्का बक्का रह गई थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि खत अब्बा ने ही लिखे थे, लेकिन क्यों और वो खत किसने किसके लिए लिखे थे? मैंने अब्बा से कहा, मुझे तो किसी खत का नहीं पता, मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब्बा उठकर मेरी तरफ आए और कहने लगे, ज्यादा भोली ना बनो, बताओ मुझे। और फिर उन्होंने पूरा कमरा फैलाया और इन्हें बिस्तर के नीचे से वो खत मिल गए। वो मुस्कुराए और मेरे आगे लहरा दिए, कहने लगे, इन्हीं खतों के बारे में पूछ रहा था, तुमने निकाल कर यहाँ छुपाए हैं ना? अब्बा को जैसे समझ आ गया था वो खत मैंने ही निकाले थे। मैंने अब्बा से कहा, मैंने निकाले, लेकिन आपने ये खत क्यों रखे थे अम्मा के सामान में? ये खत किसके लिए हैं और आपने इन्हें क्यों छुपाया? अब्बा मुस्कुराए और कहने लगे, अब जब तुमने सच जान ही लिया है तो फिर पूरा सच जान लो। मैंने ये खत इसलिए छुपाए थे कि ताकि मैं इन्हें निकाल कर ये साबित कर सकूं कि तुम बदकिरदार हो, तुम वाकई ही किसी के साथ ताल्लुकात में हो और नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हो, ताकि फिर कभी कोई तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर ना आए और ना ही मोहल्ले वाले या इर्द गिर्द के लोग तुम्हारी शादी को लेकर सवाल उठाएं, बल्कि सब तुम्हें बदकिरदार समझकर हमसे दूर हो जाएं और फिर किसी राह चलते के साथ तुम्हें रुखसत करके अपनी जान तुमसे छुड़वा लूं। तुम्हारी मनूस माँ ने मरते हुए सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी और साथ ये भी लिख दिया कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी और तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें ये सारी जायदाद मिल जाएगी। जब तक मेरे पास सिर्फ इस कारोबार और सारे पैसे इख्तियार हैं, लेकिन मैं इसके बाद इस सब का मालिक नहीं।
اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہاری ایک ناکام شادی کروا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر بٹھا لوں، اور دیکھو میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اب میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا اور اپنی زندگی گزاروں گا، اور جب بھی کوئی تمہاری شادی کی بات کرے گا تو میں یہ خط اسے دکھاؤں گا، اور ویسے بھی اب تو سبھی جانتے ہیں کہ تم بد کردار ہو۔ ابا کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ ابا مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں ہو تم میری بیٹی، تم اپنی ماں کے پہلے شوہر سے ہو۔ وہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس نے میری محبت میں اپنے شوہر کو چھوڑا تھا اور پھر مجھ سے شادی کر لی تھی، لیکن میں نے تمہاری ماں سے پیسوں کے لیے شادی کی تھی۔ میں ساری زندگی عیاشی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر تمہاری ماں ہر بات پر مجھ پر مسلط ہونے لگی، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں تمہیں کسی دارالامان میں چھوڑ آؤں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ جاتے جاتے سب تمہارے نام لکھ گئی اور مجھے اتنے سال تمہیں جیلنا پڑا۔ مگر اب تمہاری شادی بھی ہو چکی ہے اور طلاق بھی، اب تمہارے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا اور ہمیشہ کے لیے ساری جائیداد کو میں خود ہی سنبھالوں گا۔ اپنی بدنامی کے ساتھ تم اس گھر کی چار دیواری میں بند رہو گی۔ ابا کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ پھر ابا نے ایک اور راز کا انکشاف کیا کہ میں امید سے نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر مجبور کیا تھا کہ وہ میرے بارے میں جھوٹی بات کہے تاکہ میرے سسرال والے اور شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ اس عمل میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ ابا کہنے لگے، تمہارے ماموں کو ساری بات معلوم تھی، اس لیے وہ بار بار تمہیں لینے کے لیے آ جاتا تھا، مگر تم نے خود ہی اسے راستے سے ہٹا کر میرا کام آسان کر دیا۔ اب تم اس گھر میں سڑتی رہو گی اور میں عیش کروں گا۔ ابا نے سارا منصوبہ میرے آگے رکھا تھا اور میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ نہ میں حاملہ تھی، نہ بد کردار، بلکہ میرا باپ بد کردار تھا۔ ابا مجھے گھر میں چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا اور میرے پاس آنسو بہانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک ساتھ مجھ سے سارے رشتے چھین گئے تھے۔ میرا وہ باپ جسے میں اپنی زندگی کا سب سے اہم شخص مانتی تھی، وہی میرا سگا باپ نہیں تھا۔ اسی نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا۔ میرا شوہر جسے میں نے اپنی زندگی سونپی چاہی تھی، وہی مجھ پر اعتبار نہیں کر سکا تھا، اور ماموں انہیں تو میں نے خود اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ کتنی ہی بار وہ راستے میں آئے تھے اور کتنی ہی بار میں نے انہیں دھتکار دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، شاید مجھے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی تھی، اور یہی سوچ کر میں روتی چلی جا رہی تھی۔ ابا کو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کا دروازہ بجا۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئی دروازے پر گئی تو سامنے کھڑے ماموں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ماموں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، میری بچی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ تمہارے باپ نے کیسا ظلم کر دیا ہے۔ میں نے تم سے ملنا ضرور چھوڑ دیا تھا کیونکہ تم مجھے غلط سمجھتی تھی، لیکن تم سے غافل نہیں ہوا تھا۔ مجھے تمہاری شادی کا علم تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک ہی رات میں یہ شخص ایسے کھیل کھیل جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے ماموں کو ساری بات بتائی تو ماموں کہنے لگے، مجھے یہ سب کچھ پہلے دن سے ہی سمجھ آ گیا تھا جب تمہاری ماں اتنی اچانک اس دنیا سے گئی تھی۔ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے باپ کی نیت کیسی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ تمہاری ماں خود سے وصیت لکھ کر گئی تھی اور وہ مرتے دم تک اپنے شوہر پر اعتبار کرتی رہی تھی۔ تمہاری ماں کی غلطی یہ تھی کہ اس نے تمہارے محبت کرنے والے باپ کو چھوڑ کر ایک دوسرے مرد کی محبت کو قبول کیا تھا، اپنا گھر توڑ کر دوسرا گھر بسانے کی کوشش کی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی زندگی میں ہار گئی اور تمہاری زندگی بھی خراب ہوئی۔ مگر اب تم میرے ساتھ چلو۔ میرے ماموں بھی بہت پیسے والے تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور پھر انہوں نے میرے باپ کے خلاف باقاعدہ پولیس کمپلین کی اور جائیداد کو لے کر کورٹ میں کیس پہنچ گیا۔ میرے ماموں نے اجمل سے ملاقات کی اور اسے بھی ساری بات بتائی۔ اجمل کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ پھر اس نے میرے والد کے خلاف کورٹ میں بیان دیا تھا اور یوں میرے ابا کو 7 سال کی سزا ہو گئی تھی اور میری ساری دولت مجھے مل گئی تھی۔ جلد ہی یہ سچ لوگوں کو بھی پتہ چلا تھا اور میری عزت واپس مجھے حاصل ہو گئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں میں نے زندگی میں سب رشتوں کو ہار دیا تھا۔ پھر ماموں نے اپنے ہی بیٹے سے میری دھوم دھام سے شادی کی اور اب میں حسن کی بیوی ہوں۔ حسن میرا بہت خیال رکھتے ہیں، انہوں نے کبھی مجھے کسی بات کا تانا نہیں دیا
کیا بلکہ ہمیشہ میرا احساس کیا۔ کبھی کبھی میں بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ میرے ماموں نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ میرا خیال کرنے کی کوشش کی اور کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کبھی کچھ رشتوں پر جھوٹ کا ایسا پردہ پڑا ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی سچائی دیکھ نہیں پاتے، اور کچھ ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔